سیدھی منڈی ہے سر. کے کچھ پہلو پوشیدہ ہیں اور کچھ کلیدی سوالات ہیں جن کے جوابات دستیاب نہیں ہیں. کراچی میں نام کے تحائیوں کے ساتھ ایک بار پھر صدر زرداری کی نشست ہوئی ہے. پوچھا جا رہا ہے کہ وفا ہے یا مفادات کا گٹھ جوڑ. آج اس کا ہم جائزہ لیں گے. ریلوے غریب ہے لیکن غیر استعمال شدہ پٹریاں بیچ کر کھا جانے والے حوالدار نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں. اس کے اکاؤنٹ سے منجمد کیے گئے ہیں. اختتام ہفتہ کوئٹہ میں عمران خان کا جلسہ پاکستانیت کے لیے ایک سنگ میل ہے. یہ کہنا ہے سیاسی مبصرین کا. ہو گیا سو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. گزشتہ جمعے کو راولپنڈی کے قریب سانحہ بوجھا ایئر کا وہ واقعہ ہے جس نے پاکستانیوں کے ذہنوں پر اور ان کے دلوں پر انگشت نقوش چھوڑے ہیں. یہ انگشت نقوش سے قابل تھے کہ کل جو واقعات ہوئے اور تابڑ توڑ دو واقعات ہوئے. کل پاکستان میں ان کا تعلق نجی ایئر لائنز سے تھا اور اس دفعہ یہ نشانہ تھی ایئر لائنز. ایک میرے فیول والا پمپ ٹینک لیک ہو گیا جہاز کا. جس کے نتیجوں میں گھنٹے ایک دا ٹائر پنچر ہو گیا. بند کر دیا گیا. تمام پروازیں معطل ہوئی. پاکستان آنے والی کراچی پہنچنے والی بین الاقوامی پروازوں کو واپس جانا پڑا. پورے پاکستان کی ہوائی فضائی صورتحال کا اور پاکستان کے اندر جو اس وقت سیویلیشن کے معاملات ہیں ان کی مزید تشہیر پوری دنیا میں ہوئی. جمعے کو واقعہ ہوا تھا نجی ایئر لائن بھوجا ایئر کے کریش کا اور ہفتے کو روز کراچی ایئر شاہین ایئر ویز کا طیارہ لینڈ نہیں کر سکا اور لینڈ کرتے ہی جیسی لینڈ کیا اس کے ٹائر بسٹ ہو گئے. اس کے بعد بڑی ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی. اسی قسم کا ایک واقعہ کل ہی لاہور میں ہوا جہاں شاہین ایئر لائنز کا ایک اور طیارہ جو کہ مشہد جا رہا تھا اس کا فیول ٹینک لیک کر گیا اور جس کی وجہ سے ایمرجنسی سچویشن کل لاہور میں پیدا ہوئی. پاکستانیوں کے ذہن میں اس وقت سفر کرنے کے حوالے سے مختلف تمام مختلف سوالات کے لیے سفر کرنے کا واحد راستہ ریلوے تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اب ریلوے کے ذریعے سفر کرنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے. کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے اور ریل گاڑیوں کے ہاں جی ٹائم شیڈیولز کا اور ان کی وعلیکم آمد السلام. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. دوسری جانب فضائی بیٹھے ہاں یہ سیٹ جو فضائی سفر کا راستہ ہے وہ بھی کٹانا نہ پیا سیٹ تھی بیٹھے یہ تھے نے عام طور پہ بہتر رہتا ہے. ہاں جانب نجی ایئر لائنز جو پرواز کرتی ہیں ان کا جو حال ہے وہ ہے جو پچھلے 3 دنوں میں دیکھنے میں آیا. بوجھا ایئر کے حوالے سے کی جا رہی ہے اور جیسا کہ پاکستان میں عمومی طور پہ ایسے واقعات میں ہوتا ہے تحقیقات مختلف نوعیت سے مختلف لوگ مختلف حوالوں سے کر رہے ہیں. ایک تحقیق حکومت کے کہنے پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کر رہی ہے جس کا مرکز ایک تحقیق پنجاب حکومت کے کہنے پہ پنجاب پولیس کر رہی ہے کیونکہ واقعہ راولپنڈی کے قریب ہوا تھا. پنجاب پولیس اپنی تحقیقات اور اس کی ابتدائی تحقیقات میں مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیقات میں بھی اٹھائے گئے ہیں. ایک تحقیقات سول ایویشن بھی کر رہی ہے وہ ادارہ جس پر کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہے کہ اس کے اہلکاروں کی نااہلی کی وجہ سے کہیں واقعہ تو نہیں ہو گیا. اسی قسم کی ایک تحقیق وزارت دفاع نے بھی آرڈر کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام نجی ایئر لائنز کی فٹنس کو سیٹ کیا جائے جیسا کہ اس سے پہلے ان نجی ایئر لائنز کی فٹنس کے بارے میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پی آئی اے نے چند طیاروں کو کلیئروں کی لیا ہے جس کی وجہ سے جو شیڈیول پروازیں ہیں ان کا نظام متاثر ہوا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان جہازوں کی فٹنس کو افسر نو جانچا جائے. لیکن معاملہ ہے ان 147 جانوں کا جن کا ضیاع ہوا راولپنڈی میں اور بوجھا ایئر کے حوالے سے اب مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور یہ بات بالکل واضح اور کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اس کے کچھ پہلو ایسے ہیں جن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ کلیدی سوالات ہیں جن کے جواب نہیں دیے جا رہے اور یہی وہ بنیادی امور ہے جن کی بنیاد پر لگتا یہ ہے کہ شاید یہ واقعہ 127 جانیں بچائی جا سکتی تھی اور
पाकिस्तान में 2 साल के अंदर ये दूसरा बड़ा फजाई हादसा शायद ना हो पाता अगर एहतियात की जाती और जो बरमदा कवानीन या उसूल है उनको सामने रखा जाता। चंद अहम निकात हैं जो सामने आए हैं और जिनको जानना इंतहाई जरूरी है। इनके सवालात को जानना भी, इन सवालात के जवाबात को जानना जरूरी है और इन मामलात की जड़ में भी पहुंचना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर ये बहुत जरूरी है कि हादसे के बावजूद आज भी सिविल एविएशन अथॉरिटी के कानून की बरकरार ऑपरेशन जारी रखने की हाँ साहब दी गई है। आपके इल्म में शायद ये बात ना हो कि वो एयरलाइन जो 3 तैयार अच्छा ठीक है, एक हादसे के बाद आज भी ऑपरेट कर रही है और सिविल एविएशन ने अपने कवानीन के बरखिलाफ भोजा एयरलाइन को आज भी ऑपरेशन करने की इजाजत दी हुई है, जिसकी वजह से ये एयरलाइन आज भी ऑपरेट कर रही है और अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद से कराची की तरफ प्रवास कर रही थी। ये बात भी बहुत अहम है और जानने की जरूरत है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन किसी भी एयरलाइन को ऑपरेशन जारी रखने के लिए कम से कम 4 तैयारे रखने होते हैं, जबकि भोजा एयर के पास अब सिर्फ 2 तैयारे बचे हैं। कल एक तैयारा सुबह को तबाह हो गया, अब इसके पास सिर्फ 2 तैयारे हैं। सिविल एविएशन के कवानीन की वजह से कोई भी निजी एयरलाइन कंपनी अगर उसके पास 4 तैयारे ना हो तो उसे प्रवास की और ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाती। 2 तैयारों की निजी एयरलाइन कंपनी ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, जिसका एक तैयारा तबाह हुआ जुमे को और अपने साथ 127 जानों का ज़िया भी हुआ है। इसके अलावा ये बात भी इंतहाई तशवीश की है कि हादसे में तबाह होने वाला बोइंग 737-200 1985 में तैयार हुआ था। एक 1985 में तैयार होने वाला ये जहाज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था और इससे ज्यादा अहम बात यह है कि भोजा एयर के 2 तैयारे इस वक्त भी फजा में हैं, सिविल एविएशन के मुताबिक प्रवास कर सकते हैं। ये 1980 और 1981 तबाह होने वाले तैयारों इस वक्त भी भोजा एयर ऑपरेट कर रही है और सिविल एविएशन ने आज भी उसे ऑपरेट करने की इजाजत दी हुई है। ये वो तैयारे हैं जो तबाहशुदा तैयारे के मुकाबले में हजारों घंटे ज्यादा प्रवास कर चुके हैं और इनके फिटनेस के बारे में सवाल करना जाहिर है कि ये एक मामूली की बात होगी, क्योंकि वो तैयारा जो 5 साल उनसे नया था वो जिस तबाही से 2 हुआ उसके बावजूद 1980 और 1981 का तैयारा आज भी पाकिस्तान की फजाओं में भोजा एयर के नाम से प्रवास कर रहा है और सिविल एविएशन ने इसकी इजाजत दी हुई है। ये बात भी जानना बहुत जरूरी है कि भोजा एयर को सिविल एविएशन की जानिब से 2001 में 7 करोड़ रुपए की अदायगी करनी थी, लेकिन 2001 में इस एयरलाइन ने 7 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की, जिसकी वजह से इसे डिफॉल्टर करार दिया गया था और इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, इसको ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि ये एयरलाइन इसको दोबारा इजाजत किसने दी, किस तरीके से वो एयरलाइन जो डिफॉल्टर करार दी पाई उसके लाइसेंस होल्डर को दोबारा इस एयरलाइन को ऑपरेट करने की इजाजत दी। हमारी इत्तलात के मुताबिक फारूक भोजा नाम पर ये एयरलाइन लाइसेंस 1983 में जारी हुआ था। अब इस कंपनी के बराए नाम ही उन स्टेक होल्डर हैं सिर्फ के पास है, जबकि 95% शेयर दूसरे लोगों के पास है, जिनमें PIA के एक साबिक अफसर भी शामिल हैं और ये अभी तक नहीं पता कि इनकी पुष्ट पे कौन लोग शामिल हैं। ये बात बहुत मामूली इजाजत का जो कि इस एयरलाइन को अब से चंद माह कबल दी गई उसका किससे ताल्लुक है ये फिलहाल नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये बात शायद अहम होगी कि भोजा एयरलाइन ने दोबारा गैर मामूली हालात में फॉल होने के बाद कराची से मुल्तान की सर्विस सबसे पहले शुरू की थी। इस हवाले से ये बात भी जानना जरूरी है कि चंद माह कबल CAA के वो माहिरीन कौन थे जो केप टाउन में जाके भोजा एयरलाइंस के लिए लीज पर हासिल होने वाले तैयारों को प्रवास के लिए काबिल एतमाद करार दे आए थे, उनकी काबिलियत क्या थी, उनका तजुर्बा क्या था। चंद माह कबल ये तैयारे लीज पर हासिल किए गए थे केप टाउन में, यानी कि साउथ अफ्रीका की कंपनी से, वो कि इसके लिए जो बीच में कंपनी थी उसका ताल्लुक शारजा से था, लेकिन दरअसल ये तैयारे बोसीदा तैयारे केप टाउन में खड़े हुए थे, जिनके इंस्पेक्शन करने के लिए सिविल एविएशन की एक टीम यहाँ से गई थी। देखना यह है कि वो माहिरीन जिन्होंने ये इंस्पेक्शन किए थे उनकी काबिलियत क्या थी, उनका तजुर्बा क्या था। इसके अलावा ये बात भी जानने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या इस बात में कोई रब्त है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी पर आज भी एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स का गलबा है और भोजा एयर ने भी एयरफोर्स के रिटायर्ड नौकरी दी थी। हत्ता कि जुमे को क्रैश होने वाले बदकिस्मत तैयारे को भी रिटायर्ड सर्विस एयरफोर्स ऑफिसर ही चला रहे थे।
एक और बात बहुत अहम है और वो ये कि आखिर क्या वजह है कि भोजा एयर के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का कोई हुक्म आया था, लेकिन उसे ना ही सिंध हाई कोर्ट की वसी बेंच में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविल एविएशन ने चैलेंज नहीं किया था, और उसकी बुनियाद पर, उस हुक्म की बुनियाद पर भोजा एयरलाइंस को ऑपरेशंस करने की इजाजत दी थी। सिविल एविएशन ने क्यों मुनासिब नहीं समझा कि सिंध हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज किया जाए? क्या पीछे का कोई दबाव था या ये कि कोई और मामला थे जिसकी बुनियाद पर भोजा एयरलाइन को इंतहाई सूरत के साथ ऑपरेशन दोबारा शुरू करने की अब से चंद माह कम इजाजत दी गई थी? अभी तक ये बात भी मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हुई है कि आखिर इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट नूरुल्लाह अफरीदी को लैंडिंग की एक ऑल क्लियर का पैगाम दिया था या नहीं, और लैंडिंग का ऑल क्लियर का पैगाम जो था क्या वो मुरव्वजा अल्फाज के मुताबिक था और कवानीन के मुताबिक था, और अगर दिया गया था इस मौसम में तो क्यों दिया गया था ऑल क्लियर का लैंडिंग का जाहिर, या ये कि अगर नहीं दिया गया था तो उसके बाद क्या भोजा एयरलाइंस के इस पायलट ने, इस बदकिस्मत पायलट ने खुद ही लैंडिंग करने की कोशिश की? ये बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब अभी पूरी तरह से मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि क्या मुल्क के एयरपोर्ट और सीए के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निजाम को चलाने वाले मतलूबा काबिलियत और तजुर्बे के लोग हैं, या उनमें अक्सर ये सियासी सिफारिश में भर्ती होने वालों की है? सिविल एविएशन वो इदारा है जिसमें कसीर तादाद में सियासी सिफारिशात पर लोगों को भर्ती किया जाता है, मेरिट तो सामने नहीं रखा जाता। इसीलिए इबाम पैदा होता है कि वो लोग जो कि पाकिस्तान के निजाम को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को चला रहे, उनकी काबिलियत और तजुर्बा किस नौयत का है, और इसी तरह से इस्लामाबाद के उस वक्त एटीसी में जो लोग थे उनका काबिलियत और तजुर्बा क्या है। इस हवाले से एक और बहुत अहम बात है जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं हो रहा, वो ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्या इस बात को जांचा है कि भोजा एयरलाइंस के बदकिस्मत तैयारे से जो मुसाफिर सफर कर रहे थे और वो सामान जो उनके साथ था उनका प्रॉपर इंश्योरेंस किया गया था या नहीं? हमारी इत्तलात के मुताबिक रूस की एक गुमनाम सी कंपनी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन लोगों का कराया, बाद ये बात नजर नहीं आती कि वो मुरव्वजा